Very good evening, children. Today we'll learn some good problems on permutation. Okay. So my question is, if all the letters of the word bronze, if all the letters of the word bronze are arranged in dictionary order, then find rank of the word bronze. So basically the first part of the lecture we will see how to find rank of the word. Now what do you mean by rank? Let us understand first. Now see, if I talk about bronze, BRONZE, अगर इससे स्पेलिंग्स बनानी है टेकिंग ऑल द लेटर्स, इससे स्पेलिंग्स बनानी है टेकिंग ऑल द लेटर्स, देन द नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ स्पेलिंग्स that can be formed is, there are 6 letters. 6 letters can arrange in 6 factorial ways, that is 720 ways. I can have 720 words or 720 spellings. Okay. Now the question says that if these 720 words are arranged in dictionary order का मतलब है alphabetically. If all the spellings coming from the word bronze are arranged in ascending order, which number word will be bronze? Which number word will be bronze? So to do that, my first task will be to arrange these letters in ascending order. So I'll arrange these letters in ascending order. पहले आएगा B, फिर आएगा E, N, O, R, Z. If I arrange these letters in ascending order, B, E, N, O, R, Z. ठीक है? My requirement is the spelling bronze. अगर bronze तक पहुंचना है, so my first I should think about the spelling will start from which letter. If you see here, my first spelling will start from B, and I also want B. Fortunately, जो मेरा पहला letter है, so हो सकता है my first spelling can also be bronze, since this B and this B is matching, correct? So I'll fix the letter B. Since the required letter और मेरा letter match हो रहा है, I will strike out this. Practically next letter should be R. But अगर permutations की बात करें, B के बाद by default ascending order में क्या आ रहा है? E. मतलब in my dictionary, my first spelling will be starting with BE by default. If I talk about ascending order, my first spelling will be starting from BE. अब B के बाद कुछ भी आया, I don't care, because spelling starting with BE will never give me bronze. Spelling starting with BE will never give me bronze. Correct? So these 4 letters can be arranged in 4 factorial ways, and you know 4 factorial is 24. मतलब first 24 spellings will never have bronze. First 24 spellings will never have bronze. Accordingly, my next spellings should start from BN. BE के सारे combination हो गए, so alphabetically क्या आएगा? BN. Again BN में भी I will never get bronze, so again 4 factorial. So next 24 spellings में भी bronze नहीं आएगा, correct? Then I will have BO. BO में भी bronze नहीं आएगा. So again 4 factorial, that is 24 ways. Now next क्या आएगा alphabetically? BR. I've got BR and I also want BR. Strike out करो. तो यहाँ पर there are chances कि इस particular combination में bronze मिलेगा ही मिलेगा. So I'll fix these 2 letters. BR fix कर दिया. Alphabetically next letter क्या आएगा? E. Now all spellings which are starting from BRE will never have bronze, correct? So remaining 3 letters in 3 factorial,
that is 6 ways. Am I right? Then similarly B R E के बाद क्या आएगा N. इसमें भी ब्रॉन्ज नहीं आएगा कभी कि B R O चाहिए. मुझे क्या मिल रहा है B R N. So again 3 factorial, तो कितना आएगा 6. Then अल्फाबेटिकली क्या आएगा B R O. इसमें ब्रॉन्ज मिल सकता है. So I'll fix this letter also. O के बाद क्या आएगा नेक्स्ट अल्फाबेटिकली E आएगा. क्या आएगा E. इसमें भी ब्रॉन्ज नहीं मिलेगा. Now 2 letters are left. They can arrange in 2 factorial. That is 2 ways. Then B R O N. इसमें ब्रॉन्ज आ सकता है. अब तो N भी फिक्स कर दिया. अब अल्फाबेटिकली E Z आएगा 1 वे. इसके बाद नेक्स्ट लेटर हैज टू बी ब्रॉन्ज. B R O N Z E. करेक्ट. इसके बाद तो ब्रॉन्ज ही आएगा. टोटल कितने वर्ड्स आए 72, 78, 84, 86, 87, 88. So the rank of the word bronze is 88. Rank of the word bronze is 88. Understood? Yes. Now I'll take same example with the word Lucknow. There are various examples. लखनऊ की स्पेलिंग्स को अल्फाबेटिकली अरेंज किया. लखनऊ के लेटर्स को यूज करके इफ आई मेक स्पेलिंग्स एंड इफ आई अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड लखनऊ? करेक्ट. फर्स्ट लेट अस सी हाउ मेनी स्पेलिंग्स वी कैन मेक. नंबर ऑफ वर्ड्स, नथिंग इज रिपीटिंग, सो आएगा 7 फैक्टोरियल, दैट इज 5040 स्पेलिंग्स बनेंगे. कितनी स्पेलिंग्स बनेगी? 5040 स्पेलिंग्स विल बी फॉर्म. उसमें से कौन से नंबर पे लखनऊ आएगा? करेक्ट. सो बाय डिफॉल्ट आई विल अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. C K L N O U W. Correct. C K L N O W. Correct. Now the first spelling will by default start with C. C पहला letter है. If the spelling is starting with C, I don't care what are the other words, क्योंकि यहाँ पर लखनऊ कभी नहीं मिलेगा. Correct. So I fixed C over here. So 3, 4, 5, 6. बाकी 6 letters can arrange anyhow. How many ways? 6 factorial. That is 720 ways. तो पहले 720 spellings में लखनऊ कभी नहीं आएगा. अब C के सारे कॉम्बिनेशन खत्म हो गए, तो नेक्स्ट क्या है? K. करेक्ट. C के सारे स्पेलिंग्स के बाद K से स्टार्ट होगा. अगेन 6 फैक्टोरियल 720. यहां पर भी लखनऊ नहीं मिलेगा. C के सारे स्पेलिंग्स खत्म, K के सारे खत्म. अब क्या आएगा नेक्स्ट? L. अब L में लखनऊ डेफिनेटली आ सकता है. Am I right? So L के बाद फिक्स कर दिया. नेक्स्ट अल्फाबेटिकली क्या आएगा? C. तो LC. Now all spellings starting with LC. इसमें भी लखनऊ नहीं मिलेगा. So remaining 5 letters can arrange in 5 factorial. That is 120 ways. क्या आएगा? 120 ways. LC के बाद क्या आएगा अल्फाबेटिकली? LK. है ना? LC के बाद LK. इसमें भी लखनऊ नहीं आएगा. Again 5 factorial, that is 120. Then LN, है ना? K के बाद N, इसमें भी लखनऊ नहीं आएगा. So again 5 factorial, 120. LO, इसमें भी नहीं आएगा. Again 5 factorial, 120. अभी L U. U भी मुझे मिल गया. देखो, तो जो मिल रहा है फिक्स करना है, कट करना है. U के बाद अल्फाबेटिकली क्या आएगा? वी आर वेरी फॉर्चुनेट. U के बाद देखा तो C K N O W. वन शॉट में देखा तो C K N O W. तो C K N O W मतलब L U से स्टार्ट होने वाली पहली स्पेलिंग ही लखनऊ होगी अल्फाबेटिकली. सो 1 वेज. So plus 1,
इफ यू ऐड, यहाँ आएगा 1440 प्लस 481, इसको ऐड करो, आपको मिलेगा 1921. सो रैंक ऑफ द वर्ड लखनऊ इज 1921. Okay, understood? Now for your homework, you can try for Zenith. Rank of the word Zenith, Sachin, then random. Okay, so I am talking about here none of the letters are repeating. You see, all the letters were unique. Now what happens when the letter is repeating? ठीक है, so suppose I take an example of the spelling again. Again की spellings को alphabetically arrange किया. I want what is the 49th word? What is the 49th word if the words from the letters again are arranged in ascending order? Correct? उल्टा पूछा है. I've given the number, उस नंबर पे कौन सा स्पेलिंग आएगा, we need to check. Correct? So my first task is I will find number of words that I can form. कितने हैं? 5 factorial divided by, remember a is repeating 2 times, so कितना बनेगा? 60 spellings बनेगी. कितनी spellings बनेगी? 60 spellings बनेगी. उसमें से मुझे चाहिए 49th word. कौन सा चाहिए? 49. तो देखते हैं क्या आता है. अगेन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. AAGIN. ठीक है, तो पहले बाय डिफॉल्ट एक ए फिक्स कर देते हैं. मैंने ए फिक्स कर दिया है, तो दीज 4 लेटर्स कैन अरेंज हियर इन हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल. करेक्ट? 4 फैक्टोरियल मतलब कितना? 24. मुझे कहां जाना है? 49 पे. तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर नहीं आया अभी तक. मींस इफ द स्पेलिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, वो आंसर कभी नहीं आएगा. ऑल कॉम्बिनेशन हो गया, डबल ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए जी, ए आई, ए एन सब हो गया. So next spelling should start from G. Now focus here. When the spellings are starting from G, यहाँ पर A A I N 4 letters है. 4 letters can arrange in 4 factorial divide by A. 2 बार repeat हो रहा है, देखो A A I N. I need to divide by 2 factorial. So आएगा 12. ऊपर क्यों नहीं किया? कि ऊपर A के फिक्स कर दिया था मैंने. Only second A was moving. यहां पर दोनों ए मूव हो रहे हैं. तो 24 प्लस 12 36. अगेन 49 पे नहीं पहुंचा हूं मैं. सो नेक्स्ट स्पेलिंग विल स्टार्ट फ्रॉम आई. करेक्ट? अगेन दे विल बी सेम. तो डबल ए है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 12. 48 हो गया है. ए के सारे कॉम्बिनेशन खत्म, जी के सारे खत्म, आई के सारे खत्म. 49th वर्ड ही चाहिए. So write the spelling in alphabetical order. N A A G I. Alphabetically लिखा. The 49th word will be N A A G I. The first spelling that is starting from N. Understood? Yes? Clear? Okay. Now some more extra sums. The question is find number of find the exponent of 2 in 5 factorial. Purposely I am taking a small number to make you understand the concept. Okay? बोला है find the exponent of 2 in 5 factorial. Now what do you mean by exponent? If I write 5 factorial as complete answer, so with which power of 2 I can write? Correct? Let us see. Orally पहले लिख के करते हैं, then we'll derive from big numbers the pattern. Now 5 factorial का मतलब है 5 into 4 into 3 into 2 into 1. It is 5 into 2 square 3 into 2. Correct? So 2 का exponent चाहिए. So it is 2 cube into 15. It is 2 cube. Can write into 3 into 5. So what is the exponent of 2? 3 over here. Exponent of 3, 1.
exponent of 5 1. So this is what the question is asked. Find the exponent of 2 in 5 factorial. Number बहुत छोटा था, so I could easily write. Correct? It was very easy. But if I ask the question like this, find exponent of 3 in 100 factorial. मुझे 3 का एक्सपोनेंट निकालना है 100 फैक्टोरियल में. That is highly impossible for me to find 100 factorial. कुछ तो पैटर्न निकालना पड़ेगा. Let us see what is the pattern in this. Okay, so look here. मैं क्या करता हूं, जो भी फैक्टोरियल है उस फैक्टोरियल का जो नंबर है 5. Let us try over here. Let us take 5. तो 5 को फर्स्ट आई डिवाइड बाय 2. 2 का एक्सपोनेंट बोला है तो मैं 5 को 2 से डिवाइड करता हूं. ठीक है, फिर 5 को 2 के पावर से डिवाइड करता हूं. फर्स्ट 2 रेज़ टू 1, सेकेंड टाइम 2 स्क्वायर. आई विल नॉट गो बियॉन्ड 2 स्क्वायर क्योंकि अगर 2 क्यूब लिया तो माय डिनोमिनेटर इज लार्जर. सो आई एम स्टॉप द पावर्स in denominator where the denominator exceeds the numerator. So I'll stop here. तो देखो 5 divided by 2 किया, quotient will be 2. 5 by 4 किया, quotient will be 1. So what is the answer I'm getting here? 3. And this is what my answer was. Exponent of 2 कितना था? 3. कैसे आया? मैंने इसको 2 से डिवाइड किया. इस पूरे नंबर को if I divide by इस नंबर को if I divide by 2, मुझे 2 2 मिल जाएंगे. ऐसा 2 से करता हूं डिवाइड तो 2 2 मिल जाते हैं, बट ये 2 रह जाता है. सो अगेन आई डिवाइड बाय 2, दैट इज आई एम डिवाइडिंग बाय 4. आया समझ में? अ सिंपल केस टू अंडरस्टैंड. व्हाटएवर फैक्टोरियल का नंबर इज गिवन, डिवाइड दैट नंबर जिसका एक्सपोनेंट पूछा है वो प्लस उसके पावर्स. क्या करेंगे? प्लस उसके पावर्स. So 10, 100 की जगह हम लोग 10 लेके देखते हैं to understand whether it is verified or not. 10 फैक्टोरियल क्या आता है चिल्ड्रन? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. किसका एक्सपोनेंट चाहिए? 3 का. तो देखो एक पावर इधर है, एक इधर है, 2 इधर है, तो कितना आंसर आना चाहिए? 1, 2, 3, 4. So exponent of 3 in 10 factorial कितना आएगा? 4 आ रहा है. कितना आ रहा है? 4. मतलब this number can be written as 3 raised to 4 into something. करेक्ट? तो हमने जो ट्रिक अप्लाई किया है देखते हैं उससे वेरीफाई होता है क्या. तो नंबर क्या था मेरा? 10. तो फर्स्ट आई डिवाइड 10 बाय 3 because I want exponent of 3. Then I will divide 10 by 3 square. I will not go beyond this क्योंकि 3 क्यूब 27 होता है तो छोड़ देंगे. मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं? जब पहली बार 3 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1, 2, 3 3 मिल जाएंगे. 9 के पास 2 3 है, वो 3 काउंट नहीं होगा, इसलिए आई एम डिवाइडिंग बाय 9. आया समझ में? तो 10 बाय 3 कितना आएगा? क्वोशिएंट 3. 10 बाय 9 कितना आएगा? 1. सो आंसर इज 4. दिस इज करेक्ट. यस. So my question was find exponent of 3 in 100 factorial. किसके लिए पूछा था? 100 factorial. So I'll write it will be equal to the number divided by जिसका एक्सपोनेंट पूछा है प्लस 100 divided by 3 square plus 100 divided by 3 cube is 27. 100 divided by 3 raised to 4. उसके आगे नहीं जाएंगे कि 3 to the power 5 will be more than more than 100. So 100 by 3 कितना आएगा? 33. 100 by 9 11. 100 by 27 लगभग 3 आएगा. 100 by 81 1. 33, 44, 47, 48. So what is the exponent of 3 over here? This number will be 3 raised to 48 into something. So exponent of 3 कितना आया? 48. कितना exponent of 3?
48. Understood? Clear? Now let us stretch the same example with a modified question. Now my question is, find number of trailing zeros in, फर्स्ट है 5 फैक्टोरियल, सेकेंड है 10 फैक्टोरियल, थर्ड है 100 फैक्टोरियल. फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस. ट्रेलिंग जीरोस मतलब इसका जो आंसर आएगा इसके आखिरी में कितने जीरोस है. तो हमें ओरली पता है 5 फैक्टोरियल मतलब 120. यस, तो यहां पर ट्रेलिंग जीरो कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है. 10 फैक्टोरियल समथिंग डबल जीरो आता है. क्या आता है, डबल जीरो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या तो 10 फैक्टोरियल में कितना आ रहा है, जीरो, 2 जीरो आ रहा है. तो 100 फैक्टोरियल में ऐसे कितने जीरोस आएंगे, दैट आई नीड टू फाइंड. सो आई कांट सिट एंड मल्टीप्लाई 100 फैक्टोरियल, इट्स हाईली इम्पॉसिबल. करेक्ट? सो सी, अच्छा टेल मी लास्ट में जीरो कब आता है. विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट जो यहां पर यूज किया है. लास्ट में जीरो तब आता है जब उस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में 10 होगा. क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, 10. am I right? और मल्टीप्लिकेशन में 10 होने के लिए what should is required, a 2 is required and a 5 is required. हमेशा 10 नहीं आएगा. if you see 5 factorial तो 5 में 10 नंबर नहीं आ रहा है, बट 2 5 से 10 आ रहा है. तो 2 और 5 की जुगलबंदी कितनी है, एक पैर है. 5 and 2 का एक ही पैर है. 5 and 2 का एक ही पैर है, इसलिए एक जीरो आया. 5 and 2 का एक पैर है, इसलिए एक जीरो. 10 की बात करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. तो देखो यहां पर कितने 2 और 5 के पेयर्स आ रहे हैं. देखो 2 5 10, एक ही आ रहा है, तो एक जीरो. और ये बाय डिफॉल्ट 10 आ रहा है, इसका एक जीरो. तो मैंने जो लिखा था वो करेक्ट है. 10 का एक और 5 2 10 का एक. कितने जीरोस आए, 2 जीरोस आ गए. तो कैसे लॉजिक लगाया, मैं क्या करूंगा, पहले निकालूंगा एक्सपोनेंट ऑफ 2. किसका निकालूंगा, एक्सपोनेंट ऑफ 2. इससे 2 के सारे पावर्स मिल जाएंगे मुझे. कितने पावर्स है 2 के. फिर मैं निकालूंगा एक्सपोनेंट ऑफ 5. एक्सपोनेंट ऑफ 5. बट मैंने क्या कहा था, 2 और 5 का पेयरिंग होना चाहिए. तो इमेजिन करो 2 का एक्सपोनेंट है 10, 5 का एक्सपोनेंट है 6. अगर मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है. तो 2 का पावर है 10, 5 का पावर है 6. तो 10 कितने बनेंगे बच्चों, यहां पर पावर 10 है, यहां पर 6 है, तो 6 ही 10 बनेंगे. जिसका पावर कम है उतने ही 10 बनेंगे. मतलब नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने आएंगे, 6. क्रॉस वेरीफाई करते हैं. इसमें 2 का पावर कितना आएगा 10 फैक्टोरियल में, या 5 में ले लो. 5 में 2 का पावर कितना आएगा, 1 2 3. कितना आ रहा है 2 का पावर 3. और 5 का पावर कितना आ रहा है 1. तो 2 का पावर है 3, 5 का पावर है 1. छोटा कौन है, 5 का पावर, इसलिए वो लेंगे, इसलिए 1 0 आया. इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 के पावर्स आ रहे हैं. और 5 के पावर कितने आ रहे हैं, 1 2. तो इसके पावर छोटे हैं, उतना जीरोस होंगे. एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमेशा 5 के पावर्स ही कम होंगे, कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन में हमेशा 2 का पावर ज्यादा होता है. तो इट्स ऑलवेज फिजिबल टू जस्ट फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 5. क्या फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंट ऑफ 5. तो 100 फैक्टोरियल के ट्रेलिंग जीरोस के लिए, ट्रेलिंग जीरोस के लिए व्हाट विल आई डू, 100 बाय 5, 100 बाय 5 स्क्वायर. आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि 125 हो जाएगा अहेड ऑफ दिस नंबर. सो 100 बाय 5 20, 100 बाय 25 4. सो इन शॉर्ट 24 ट्रेलिंग जीरोस आएंगे 100 फैक्टोरियल में. 100 फैक्टोरियल के एंड में 24 जीरोस आएंगे. अंडरस्टूड? सम गुड सम्स, am I right? Correct? Clear everybody?
Next sum, very good sum student and very important. It is find the number of non-negative, sorry, first we'll take number of positive integral solutions of the equation x plus y plus z equal to 10, satisfying the equation. Okay, I want to find the values of x, y and z which are by default positive integers. मतलब x, y, z 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 7, 6 कुछ भी हो सकता है, but they are integers and addition of them should be only 10. So ऐसे कितने possible ways में ऐसा हो सकता है? So initial right, it can be 1, 3, 6. एक solution ये हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10. Then 2, 4 हो सकता है. 2, 6, 2 हो सकता है. There can be many combinations, correct? तो मुझे ये number of combinations find करने हैं and 0 is not allowed. Positive बोला है मतलब 0 is not allowed, correct? So I convert this scenario into Beggar's method. It is called as Beggar's method. Let us see what does that mean. Now here x, y, z means 3 beggars. X, y, z means 3 beggars I have. Name them as x, y and z. 3 beggars में 10 identical coins. इस 10 को हम इंटीजर बोला है ना, आंसर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो मैं 10 की बजाय 10 कॉइन्स मान लेता हूं. आई हैव 10 आइडेंटिकल कॉइन्स. करेक्ट? I have 10 identical coins of each 1 rupee. ठीक है? इसे फायदा क्या होगा देखो. तो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन क्या है? 1, 3, 6. मतलब एक के पास ये 1 चला गया, y के पास 3 कॉइन्स चले गए, z के पास 6 कॉइन्स चले गए. करेक्ट? इन शॉर्ट मुझे क्या करना है? ये 10 कॉइन्स इन 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. 10 कॉइन्स को 3 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, so that each beggar gets some money because 0 allowed नहीं है. वो करने के लिए I will need to make partitions. If I take the first solution, for example, हम सोचते हैं कि एक ही solution है. चलो क्या है? 1, 3, 6. कैसे आएगा वो? मुझे एक दीवार यहां बनानी पड़ेगी. 1, दूसरे भिखारी को 3 रुपए मिले हैं तो 3. करेक्ट? ये एक सॉल्यूशन मिल गया. अब अगर मैं इन दो लाइंस को इफ आई गो ऑन मूविंग दीज टू लाइंस, आई विल गेट डिफरेंट सॉल्यूशन. करेक्ट? इसको अगर उठा के यहां से मैं यहां रखता हूं, सपोज मुझे और एक सॉल्यूशन मिल गया 2, 2, 6. इसको उठाता हूं और इसको यहां रख देता हूं तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 4. तो बेसिकली मुझे करना क्या है? सिंपल, इन दोनों स्टिक्स को मुझे मूव करना है. एंड वेयर ऑल आई कैन मूव दिस स्टिक्स, दीज 2 sticks, I'll remove from here now. These 2 sticks, these are my 2 sticks. इन दोनों स्टिक्स को मूव करना है. The way I am going, I will move, I will go on getting the solution. तो स्टिक्स कहां मूव हो सकती है? These 2 sticks can be placed here, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इन 9 ब्लैक डॉट्स के ऊपर इन दोनों स्टिक्स को रखा. इन 9 डॉट्स में से किन्हीं भी 2 डॉट्स पे ये स्टिक्स रखी. इफ आई कीप हियर, आई विल गेट 1 सॉल्यूशन. इफ आई कीप हियर, एक सॉल्यूशन. यहां और यहां एक और सॉल्यूशन. यहां और यहां एक और सॉल्यूशन. तो सी what is happening? These 9 dots can have 2 sticks anywhere. That means the sticks can be moved in 9 C2 ways. Combination क्यों लिखा है? Stick ऐसा रखो या ऐसा रखो, एक ही बात है. So my answer is 9 C2 ways में
I can have positive integral solution of this equation. आया समझ में? क्या आएगा? 9c2. Why? Because I can move these two sticks at 9 places. 9 में से किन्हीं भी 2 जगह पे स्टिक रखी, I will go on getting the solution. Correct? प्रॉब्लम ये है 9c2 आया कैसे? Always it is not possible to draw these circles. Correct? So let us see what was known to you. 9 और ये 2. बेगर्स कितने थे मेरे पास? 3 बेगर्स थे. बेगर्स कितने थे? 3 में से एक माइनस किया है, 3 में से एक माइनस किया है. So I can assume that I had r beggars, so r minus 1. r beggars थे, तो नीचे कितना आया? r minus 1. आइडेंटिकल कॉइन्स कितने थे मेरे पास? आइडेंटिकल कॉइन्स कितने थे? 10. या एडिशन कितना चाहिए था? 10. और ये कितना आया? 9. So I can write if this n 10 is n, so आंसर आएगा n minus 1. करेक्ट? क्या आएगा? n minus 1 c r minus 1. तो n कितना था? 10. टोटल आंसर कितना चाहिए? 10. दिस इज पॉसिबल इफ दिस 10 ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल. ये 10 आइडेंटिकल रहे तभी पॉसिबल है. सो 10 minus 1 9 c. कितने लोगों में बांटना है? 3 लोगों में. तो मैंने पार्टीशन कितने बनाए हैं? 2. सो 3 minus 1 2. आया समझ में? इज इट क्लियर? यस. Now just modify the question. Now it is find number of non-negative integral solutions. It is non-negative integral solutions of the same equation. Now what are non-negative? Non-negative मतलब क्या है? ऐसा भी हो सकता है किसी एक भिखारी को या किसी 2 भिखारियों को 0 मिला हो, कुछ पैसा ही ना मिला हो. Means one solution could have been 0 0 10. It could have been 10 0 0 और 5 0 5. 0 भी चलेगा. तो होगा क्या? These 10 coins, again I'll draw 10 coins. Now solution 0 भी हो सकता है. तो ये sticks जो है, stick can be kept here also. तो मेरा सिंपल केस में क्या लेते हैं? ये पहला सॉल्यूशन लेके देखते हैं. वर्स्ट केस का पहला सॉल्यूशन. अगर ये 0 0 10 बनाना है तो मेरी स्टिक्स कहां होनी चाहिए? एक तो यहां होनी चाहिए, दूसरी यहां होनी चाहिए. तभी तो पहले को 0, दूसरे को 0 और तीसरे को 10 मिलेगा. Am I right? पहले को 0, दूसरे को 0 और तीसरे को 10. तो अभी स्टिक्स मूव करने की जगह कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. कितनी जगह है? 11 और वो 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितनी जगह है? 12 है ना. So here I will have 12 places are there where I can move those 2 sticks. Correct? So 12 C2 possible ways में I will get non-negative integral solution of x plus 5 plus z equal to 10. Understood? इसका भी जनरलाइज निकालने की कोशिश करते हैं अभी. अगेन ये 2 क्या था? 3 भिखारी थे मेरे पास, तो 2 बन जाएगा r minus 1. 2 क्या बन जाएगा? r minus 1. करेक्ट? ऊपर आ गया 12. मेरे पास ये तो था 10 और ये थे 3. करेक्ट? ये था n, r कितना था? 3. मेरा यहां पर n 10 है, r 3 है, तो 10 प्लस 3 कितना होता है? 13. मुझे कितना चाहिए? 12. तो मैं लिखूंगा n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1. आया समझ में? n those identical objects, 3 different r means different people. आया समझ में? So नॉन नेगेटिव बोला n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1 और सिर्फ पॉजिटिव बोला तो n minus 1 c r minus 1. Okay? In the upcoming lectures, we'll see more sums in different manners of these type, and also we'll see sums finding on proper factors and division and distribution. Okay? Thank you very much, children. Please practice these sums.